Hello, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Hi. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Ankita. Good afternoon, Jasmine, Good Shantanu. afternoon, sir. So, after a long time, how are you all? So very happy. Okay. So, Jasmine, your exams have been postponed, I heard. Yes, sir. Okay. So, you are happy or sad? Sir, both. Okay. Why are you happy and why are you sad? Sir, some social and some science concept where I have not much prepared up to my level, Okay. and other subject that I have prepared, they are gone on waste. Okay, I understand. So any topic in social sciences, if you have a problem, please let me know. Okay. So Yes, we sir. may not have actually gone into that topic, but it's still okay. You can send your questions or queries or whatever in the WhatsApp group, or you can directly WhatsApp me. I'll try to answer. Okay. Yes, sir. Okay. Good. So now Shovik has also joined. So should we start the class? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, a few more are going to join soon. So let me share my screen with you. Okay, so do you remember vaguely what we were discussing? Yes, Sir, sir. the Nationalism in The drawback. India. nationalism in India. हाँ वो तो मुझे पता है यार, वो तो टॉपिक बता रहे हो, लेकिन डिस्कस के क्या किया था? ओके Sir, Jallianwala Bagh एक मिनट एक मिनट massacre. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट होल्ड करो. ओके मैं ये एक चैलेंज है, ये है आपका 2 मिनट्स चैलेंज. ठीक है, लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया गया था उसको 2 मिनट में आपको बताना है. ठीक है, बस मैं यहाँ पे रख देता हूँ. जालियानवाला बाग के बारे में तो सबको पता है, लेकिन मुझे ये 2 मिनट चैलेंज कौन एक्सेप्ट करेगा? हु विल एक्सेप्ट दिस 2 मिनट चैलेंज? सम अप द क्लास इन 2 मिनट्स. माइंड मैप मैंने आपके साथ शेयर किया था, याद है ना? अभी मैं आगे और भी शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डेवलप सम मटेरियल विच विल हेल्प यू टू फोकस एंड ऑल्सो जैसे याद रह सके तुम्हें, एंड उसी को हम लोग, अगर याद भी नहीं आ रहा है कोई पर्टिकुलर आंसर, एग्जैक्ट आंसर, तो कम से कम आप लोग लिख सकते हो. सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग लाइक दैट. सो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 2 मिनट का चैलेंज कौन एक्सेप्ट कर रहा है? Sir, me. शुभम? Sir, चलो. me Yes, too. sir. Okay, Jasmine. Very good. So Shubham or Jasmine, since Shubham said first, so Shubham, you start off. After that, Jasmine. Yes, sir. We discussed about the meaning of nationalism. Mhm. Means nationalism means patriotism or affection towards one's country. Mhm. Then we went to the introduction. Then the First World War or impact of the First World War. Mhm. Then Satyagraha by Mahatma Gandhi ji. Mhm. Then Rowlatt Act also, sir. We studied Okay. and consequences also of Rowlatt Act. Then Jallianwala Bagh massacre. अच्छा. Then yes, sir. That much only. So ये Jallianwala तो Bagh massacre we will ये be तो able. हुआ नहीं, मतलब क्या हुआ ये? बेसिकली ये क्या था कि अ, ये तुम्हारा 2 मिनट का चैलेंज नहीं हुआ है ना? कितने का चैलेंज हुआ ये? 1 मिनट का भी नहीं हुआ. 45 सेकेंड्स में तुमने सम अप कर दिया और बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ दिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. जैस्मिन, योर टाइम Yes, sir. स्टार्ट्स नाउ. So first we read about nationalism, how nationalism came about that. Next we went to what are the impacts of the First World War on India. There were crop failure, pandemic. So people were going to a hard time when Mahatma Gandhi came from South Africa. Then he launched three successful in satyagrahas in Ahmedabad, uh, Kheda, Ahmedabad, Kheda, and One more Champaran. place. Champaran. Yes, Champaran.
Champaran is in which place? Which? Bihar. The first Bihar. Champaran, then Kheda, then Ahmedabad. हाँ शुभम अभी तुम चुप रहो. हाँ Jasmine, go ahead. Yes, sir. Champaran, Kheda, and Ahmedabad in the year 1916, 1917, and 1918, respectively. Then Gandhiji gained confidence from this three satyagraha, and later in 1919, a Rowlatt Act was passed by the opposition of many Indians, but it was passed, which gave the power to the British government to imprison anyone for 2 years without trial. Trial, yes. Next. So to oppose that, Mahatma Gandhi launched Rowlatt Satyagraha. In that, hartals were launched. Many workshops were closed. But slowly, it became violence. Many people were. You are Sir, doing I well. don't. Yes. Okay, you are doing well. You did very well actually. Last moment में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ना. Yes, sir. तो हाँ शुभम बोलो क्या बोल रहे थे. सर शांतनु. शांतनु तुम बीच में बोल रहे थे. अच्छा. नो No, सर, sir, नो I सर, was सर telling- मैं एक नहीं कहली. अच्छा ना शुभम कुछ बोल रहा था बीच में. Sir, I was telling about the means date-wise. I was telling about the Satyagraha movements in Champaran. देखो शुभम तुम बहुत अच्छा कर रहे थे. The only thing is that ना see I you told cannot. the topics only. हाँ तो तुमने सिर्फ ना हेडिंग बता दिया, टॉपिक बता दिया. Skeletons. एग्जैक्टली. तो 2 He मिनट told में. our history. हाँ तो एनीवे जो भी था तो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हमने देखा. उसके बाद व्हाट हैपेंड, एमके गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड देन ही स्टार्टेड अ मास एजिटेशन. डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, मास एजिटेशन, व्हिच ही कॉल्ड सत्याग्रह. एंड व्हाट इज सत्याग्रह उसको भी बताना पड़ेगा, आपने नहीं बताया ये बात. इट मींस होल्डिंग ऑन टू द ट्रुथ और द फोर्स ऑफ ट्रुथ यूजिंग नॉन वायलेंस मींस ऑफ स्ट्रगल. ओके हाँ बोलो क्या बोल रहे थे. Another point, Rabindranath Tagore returned his title knighthood at अरे that time तुम of. अभी शांतनु बहुत आगे जा रहे हो. रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न ये इसमें नहीं आएगा. अभी तो अभी हम जलियांवाला उसको पढ़ने वाले थे, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में. ठीक है अभी वेट करो, अभी का उसका टाइम नहीं आया. और लास्ट क्लास में तो मैंने बताया नहीं था इसके बारे में. बताया था कि बताया था. सर जालियानवाला बाग के बारे में हाँ तो जालियानवाला बाग के बाद सर उससे जालियानवाला बाग के साथ हमारा क्लास खत्म हुआ था. रविंद्रनाथ टैगोर ने कब उसको वापस किया. डोंट गेट द डेट्स रॉन्ग, डोंट गेट द इयर्स रॉन्ग. समझ में आ रहा है. Yes, हमने sir. लास्ट क्लास में कहां पे खत्म किया था. मैंने तुम्हें लास्ट में वो बुलेट मार्क्स वाला Yes, sir, जो pictures फोटो दिखाए दिखाया था थे. ना. जालियानवाला Yes, sir. बाग जब जनरल डायर ने जो गोली चलाई थी, मतलब वो और उनके जो सिपाही थे वो वहीं पे हमने खत्म किया था, है कि नहीं. ओके एनीवे लेट्स कम बैक टू सत्याग्रह. तो सत्याग्रह में क्या क्या टूल्स यूज होते थे. हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल एंड नॉन कोऑपरेशन, है ना. उसके बाद बड़े अच्छे से जैस्मिन ने बताया जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह 1916, 1917 एंड 1918 तीन जगह पे है. 16 में चंपारण बिहार, 17 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड 18 में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स. ठीक है. So another question I asked in the WhatsApp group: what is the difference between passive resistance and satyagraha? Yes. ओके वेरी गुड क्वेश्चन. आज हम उसके बारे में बात करेंगे. अच्छा एक्चुअली बीच में मैं थोड़ा बिजी रह गया था तो इसके वजह से ठीक से हमने डिस्कशन नहीं किया. हाँ बताओ. अच्छा जिसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वो म्यूट कर दो माइक को, ठीक है ना. ओके तो उसके बाद आया रॉलेट एक्ट, है ना. रॉलेट एक्ट में क्या हुआ, एनर्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1999 को पॉपुलरली बोला जाता है रॉलेट एक्ट. फाइन. ये Sir, what is the meaning of agitation? Agitation is basically a kind of mass
लाइक मतलब जैसे असंतोष जो जन असंतोष कहना Yes, sir. जन असंतोष होची एजिटेशन Yes. मतलब मास एजिटेशन इज जन असंतोष सो एजिटेशन इज असंतोष लाइक फॉर एग्जांपल सपोज जब घर में आर्ग्यूमेंट हो जाता है ना, तो घर में कोई जो बड़ा है कुछ बोल देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद क्या होता है हम भी थोड़ा सा एकदम गुस्से में आ जाते हैं और थोड़ा सा बड़े अकड़ के रहते हैं ना। Yes, तो sir. हम लोग का जो मतलब गुस्से का लेवल तक जो पहुंचते हैं ना उसको बोलते हैं एजिटेशन, एजिटेटेड, एक्साइटेड, मतलब एक्साइटेड इन अ रॉन्ग वे, रॉन्ग तो नहीं बोल सकते बट एक्साइटेड Negative way. इन अ या असंतोष भापरे एक्साइटेड हवा। Yes, sir. ओके Got it. हाँ, सो नाउ ये जो रॉलेट एक्ट आया था उसके बाद क्या हुआ कि उसमें भी जास्मिन ने बताया कि क्या क्या हो सकता है, उसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकता है विदाउट ट्रायल, 2 साल तक उनको वो लोग कैद करके रख सकते हैं एंड ऑल दैट। एंड सिडनी रॉलेट ने उन्हीं की वजह से ये एक्ट आया था एंड उसको काउंटर करने के लिए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, वो सत्याग्रह चलाया, नॉन वायलेंट सत्याग्रह। तो 6 अप्रैल 1999 को हड़ताल ऑर्गेनाइज किया गया, शॉप्स वर क्लोज डाउन, वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम केम टू अ स्टैंड स्टिल। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, उन्होंने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। मैंने बोला था मार्शल लॉ उस दिन क्या है, Yes, sir. आर्मी को पावर दे दिया गया। तो जनरल sir. डायर, ये डी का एक्चुअली कैपिटल होना चाहिए, छोटा हो गया, जनरल डायर टुक कमांड। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे कैटल फेयर होता था हर बैसाखी के टाइम पे। बैसाखी आता है वही अप्रैल के महीने में, जनरली पंजाब का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो वहां पे अमृतसर में हो रहा था एंड वहां पे बहुत नेटिव के लोग आए हुए थे, उनको नहीं पता था कि वहां पे मार्शल लॉ इंपोज हो गया है। तो वो लोग जब आए उसी टाइम उसी जगह पे उन्होंने जो सत्याग्रही थे उन्होंने भी एक वहां पे एक पर्टिकुलर कोई वो ऑर्गेनाइज किया हुआ था, एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो डायर, जनरल डायर एंटर्ड दैट एरिया, एग्जिट को ब्लॉक किया एंड देन ओपन फायर ऑन द क्राउड indiscriminately. That means without differentiating between the demonstrators and the people, the general public who had come for the cattle fair. सबको उन्होंने वहां पे गोलियों का शिकार बना दिया। ठीक है, तो एक डर पैदा करने के लिए, एक टेरर पैदा करने के लिए लोगों के बीच में, लेटर ऑन ही सेड दैट ही डिड दैट। सो उसके बाद क्या हुआ, lots of strikes and people started attacking government buildings and गवर्नमेंट ने क्या किया, ये ब्रूटल रिप्रेशन को दबाने के लिए ह्यूमिलिएट किया लोगों को, उनका जूते जो है चटवाए गए और टेरराइज किया लोगों को। एंड उसके बाद वायलेंस और भी ज्यादा स्प्रेड हो गया, बोथ from the British side against the Indian people, general public, and also from the general public against the Britishers. तो इतना ज्यादा वायलेंस को देख के गांधी जी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट। तो यहां तक हमने खत्म किया था, अब क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक 2 मिनट का चैलेंज मैं और दूंगा बाद में, अभी नहीं। ओके, लेट्स गो टू द सेशन, आवर टॉपिक टुडे। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो व्हेन जालियानवाला बाग में जब ये हुआ, when this thing happened in Jallianwala Bagh, that's a big thing, entire country में वो आग की तरफ फैल गया ये जो न्यूज कि ऐसे से हुआ है। and on the general public this kind of a firing has happened, so many people have been killed। वहां पे ना एक मैं और उस दिन एक बताना भूल गया था तुम लोगों को, वहां पे ये तो अभी जो हमने देखा वो तो एक दीवार जैसा था, लेकिन उसी एरिया के अंदर एक अंधा कुआं था। अंधा कुआं का मतलब है कि एक कुआं था जिसमें पानी नहीं था, ठीक है ना। तो जब ये इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग स्टार्ट हुआ, बहुत लोग
अपने आप को बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, और बहुत लोगों का बाद में बॉडीज, डेड बॉडीज उसी कुएं से निकाला गया, वो सब मर गए थे उसके अंदर ही। Yes, दम sir. भी घुट गया था लोगों का, और एक के बाद एक जंप करते गए तो वो भी मर गए थे। ओके, सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, जालियानवाला बाग फॉल आउट जब हुआ तो एंटायर कंट्री में एक तरह से एक दहशत फैल गई ना, दोनों साइड से दहशत था, क्योंकि एक तो जो आर्मी था वो लोग भी काफी सक्रिय थे उस टाइम, लाइक जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी एजिटेशन स्टार्ट हो गया था, अभी बुझ पड़ा ना जन असंतोष, एजिटेशन स्टार्ट हो गया था। बट एट द सेम टाइम द लीडर्स ऑफ दैट टाइम दे थॉट ऑफ मेथड्स टू काउंटर द ब्रिटिश राज। तो नंबर 1 उन्होंने क्या किया, दे सरेंडर्ड द गवर्नमेंट टाइटल्स। शांतनु, अभी हम तुम्हारे टॉपिक पे आ रहे हैं। ओके, सो द लीडर्स, उस टाइम पे जो लीडर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल ने बुद्धिजीवी, तो बुद्धिजीवी थे, और कुछ अच्छे लोग थे जिनको बड़े बड़े टाइटल से नवाजा गया था, तो दे स्टार्टेड सरेंडरिंग देयर टाइटल्स। People, general public, they boycotted the civil services. They boycotted the army, the police, even lawyers. उन्होंने भी कोर्ट छोड़ दिया, बोले कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। लोगों ने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका मतलब जो वोट जहां पे दिया जाता है वो वोट भी नहीं देंगे, ये ऐसे बोल दिया। बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिया, फॉरेन गुड्स को खरीदना बंद कर दिया लोगों ने, एकदम मास एजिटेशन स्टार्ट हो गया। सो ये जो मेथड था जो लीडर्स का उस टाइम तो कांग्रेस ही एक पार्टी थी, तो उस टाइम जो उनका मेथड था यही था कि जितना ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें रिप्रेस करेगी, रिप्रेशन मतलब दबाने की कोशिश करेगी, हम उतना ज्यादा सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। ठीक है, तो हम उतना ज्यादा उनके खिलाफ डिसोबीडियंस, जो लॉ बनाएंगे हम कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन वायलेंस यूज नहीं करेंगे, नॉन वायलेंट मेथड में करेंगे। लॉ कुछ नहीं मानेंगे लेकिन नॉन वायलेंट मेथड में करेंगे। Sir, what was the duration of Jallianwala Massacre? No, it was just one day. In a matter of few hours, it finished. खत्म हो गया, एक कुछ ही घंटों के अंदर। जितने उनके पास गोलियां थी वो सारी गोलियां उन्होंने उनके ऊपर, क्योंकि आई थिंक अराउंड 30 पुलिसमैन थे ना, जो आर्मी के लोग थे, तो उन्होंने जाके जब गोली चलाई, उनका ये बताया जाता है कि जब तक उनके पहले कैसा होता था कि ये गोली का ऐसे लगाते थे ना पूरा, और अपने राइफल में गोली भरते थे और चलाते थे, तो वो जो गोली था उसको खोलने के बाद हम लोग राइफल में से लगा देते हैं, तो एक के बाद एक ऑटोमेटिक अगर होगा तो एक के बाद एक गोली आता रहेगा, अब मैनुअल होगा तो उसको लोड करके फायरिंग करना पड़ेगा। तो उनके पास जितनी गोलियां थी उसके बाद लोग ऐसे पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गोली बंद करने का संकेत जनरल डायर ने नहीं दिया। गोली चलना तभी बंद हुआ जब एंटायर उनके टोटल बुलेट्स खत्म हो गए थे, उसके बाद ही उन्होंने वो जगह छोड़ दिया। तब तक जो लोग नीचे लेटे हुए थे वो बच गए थे, बाकी तो मतलब यू कैन कुछ गवर्नमेंट का जो फिगर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का फिगर था कि कुछ हंड्रेड्स लोग मरे थे, लेकिन जो जनरली बताया जाता कि 1000 से ज्यादा लोग उस दिन शहीद हो गए थे। ओके, सो ये तो मेथड था जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ, लेकिन वही जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उनके बीच में भी डिसएग्रीमेंट्स था। कुछ कांग्रेस के मेंबर्स ये बोल रहे थे कि जो इलेक्शन, जो काउंसिल इलेक्शन होते हैं, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, पंचायत तो बाद में आया लेकिन वहां उस टाइम काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, मतलब उसको त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि लोग वोट ना दें, क्योंकि वो सोचते थे, जो कुछ कांग्रेस के नेता ये सोचते थे कि हमें सिस्टम के अंदर रह के ही सिस्टम को फाइट करना है। कुछ और नेता थे जैसे सीआर दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, दे फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने एक स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिश किया टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स।
उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, हम भी अपने कैंडिडेट्स देंगे ताकि हम लोग सिस्टम के अंदर घुसेंगे, आज हम ब्रिटिश को फाइट करेंगे। कुछ और ऐसे लीडर्स थे, वो ये सोच रहे थे कि वो लोग क्या करेंगे, वायलेंट मींस को यूज करके अपना फ्रीडम लाएंगे। इनफैक्ट जो बाद में जब जवाहरलाल नेहरू देखते हैं, या फिर मोतीलाल नेहरू कौन है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके फादर है। ठीक है, क्लियर? सर कट हो गया था सर, बीच में क्या पूछे समझ में नहीं आया। ओके, मैं ये बोल रहा था कि कुछ कांग्रेस के लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे थे काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने एक मोतीलाल नेहरू, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनके फादर, और सीआर दास, चित्तरंजन दास, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे फ्रॉम बंगाल साइड। तो उन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी, कांग्रेस के अंदर एक स्वराज पार्टी उन्होंने फॉर्म कर दी, और वो बोल रहे थे कि हमें काउंसिल पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, हमें अपने कैंडिडेट्स देने चाहिए, हमें उनको लड़ाना चाहिए, एंड हमें सिस्टम के अंदर जाना चाहिए, जाके हम ब्रिटिश को फाइट कर सकते हैं। कुछ और लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि ये जो मूवमेंट है, जालियांवाला बाग के बाद जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वो मूवमेंट कभी भी वायलेंट हो सकता है, नॉन वायलेंस को हम करके नहीं जा सकते ज्यादा दूर। बहुत लोग ये भी सोचते थे। इनफैक्ट गांधी जी वॉज द ओनली वन who always stood with non-violence. जवाहरलाल नेहरू भी कंप्लीटली नॉन-वायलेंस मोड को यूज करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में गांधी जी का पर्सनालिटी इतना बड़ा था, उनका जो सोचने का तरीका था, उनका जो थॉट था, वो इतना ज्यादा बड़ा था और महान था कि उनके सोच के सामने सबको झुकना पड़ा। अच्छा, अब उसके बाद आया खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया इन 1919, उसमें क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर का डिफीट हो गया, टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर था उनका डिफीट हो गया। तो वो लोग जब हार गए तो जो अलाइड फोर्सेस वही जीते, तो नेचुरली ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट टर्की। तो र्यूमर ये स्प्रेड हुआ कि एक ऑटोमन एम्परर, जो खलीफा उनको बोलते थे, खलीफा बोलते थे उनको, हाँ, तो वो खलीफा, बिकॉज ही इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, खलीफा जो है वो स्पिरिचुअल हेड है इस्लामिक वर्ल्ड के। तो उनके साथ एक बड़ा चिल्ड्रन विल बिकम द किंग, हाँ, मतलब किंग इन द सेंस कि वो स्पिरिचुअल हेड ही रहेंगे, उसी टाइप का वो चलता था। वो एम्परर थे, तो नेचुरली अगर उसका सिस्टम वैसे चलता गया तो वो किंग ही होके या एम्परर होके रहेंगे। तो उनके साथ एक बड़ा हार्श ट्रीटी ब्रिटिशर्स ने मतलब जो ट्रीटी मतलब संधि, जो चुक्ति हुए, तो चुक्ति उनके साथ करने चाह रहे थे, ये लोगों ने सुना, और इंडिया में भी सुना। जो इस्लामिक लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने भी ये बात सुनी। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, तो ये जो टर्किश सुल्तान है, उनका नाम है खलीफा, जिसको इंग्लिश में हम कैलिफ बोलते हैं, हाँ, and the Muslim consider him as the spiritual father. So ये खलीफा के जो पावर्स हैं, टेम्पोरल पावर्स के मतलब यहाँ पे, मतलब दुनिया में, इस दुनिया में जो उनका पावर मिला था, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर भी उनका है ना इस्लामिक वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो जो उनका जो टेम्पोरल पावर है, उसको डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमिटी फॉर्म किया गया बॉम्बे में इन मार्च 1919। ठीक है, तो ये खिलाफत कमिटी फॉर्म किया, एंड एक मूवमेंट चलाया गया, जिसको लीड किया किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च किया, खिलाफत मूवमेंट। क्यों लॉन्च किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ही तो थे ना जिन्होंने उनके साथ चुक्ति करने के लिए वो ट्राई कर रहे थे। एक बड़ा डिफिकल्ट चुक्ति था जिसमें कि उनका कोई पावर नहीं रहेगा। किसका? खलीफा का। The aim of this movement was to protest against the injustice done to Turkey by Britain after the First World War. And गांधी जी ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखा, क्योंकि अभी तक पूरा जो मुस्लिम संप्रदाय था वो
कंप्लीटली मिलके हिंदू के साथ नहीं थे, लेकिन सर हाँ। इसे करने से मुस्लिम भी हिंदू के साथ हो जाते। एग्जैक्टली तो खिलाफत मूवमेंट में जब गांधी जी ने देखा ये अपॉर्चुनिटी, तो ये उन्होंने एक अम्ब्रेला के अंदर सबको ले आए, मुस्लिम लोगों को भी और हिंदू लोगों को भी. And he discussed with the young Muslim leaders, and they also started discussing with Gandhi about the possibility of a united mass action on this issue. So Gandhi took this advantage, and in Calcutta session of the Congress in September 1920, Calcutta में ये session हो रहा था, जो annual session उनका होता है, he convinced the other leaders of the Congress to start a non-cooperation movement in support of Khilafat along with Swaraj. तो स्वराज मतलब क्या है? स्वराज का मतलब क्या है? सर फ्रीडम, अपने अपने खुद पर राज करना, सेल्फ रूल. स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल. ठीक, जो सेकंड वाला बताया वही है कि खुद अपने ऊपर रूल करना. दैट इज व्हाट स्वराज इज. हाँ, तो स्वराज चाहते थे. एंड उसके बाद क्या हुआ? मेनी मुस्लिम्स जॉइन दिस मूवमेंट. अभी मैं तुमको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ. एक वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. अभी तक कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके, सब लोग क्लियर हैं? सब लोग स्प्राइट पी रहे हो? नो सर. नो सर. अच्छा, नहीं स्प्राइट क्लियर है ना, इसलिए मैंने पूछा. मजाक कर रहा था. स्प्राइट क्लियर है बोलते हैं ना. Sir, now we are drinking. Sir, now we are drinking. Don't drink and get sick. No, sir, we are clear. No. Acha, okay, now you're. Oh wow, that was interesting. Good one, Shubham. Okay, let's watch this video. The Khilafat and Non-Cooperation Movement. In this module, you learn about the Khilafat and Non-Cooperation Movement that was organized by Indian nationalists against the British. The Khilafat and Non-Cooperation Movement was closely connected with the anti-colonial struggle of the Indians against the British, especially during the First World War and the post-war years. During these years, Indian people faced hardships such as shortage of food, increase in taxes, and forceful recruitment to the army. People all over India fought against such problems, but in isolation, till Mahatma Gandhi appeared and suggested a new mode of struggle. In 1915, Mahatma Gandhi returned to India from South Africa and introduced a new method of mass agitation called Satyagraha, based on the principles of truth and non-violence. He organized unified peasant movements in Bihar and Gujarat against the British, which were very successful. अच्छा, बिहार और गुजरात में क्या था बोलो अभी? Encouraged by the Bihar, Champaran, Gandhiji Kheda and Ahmedabad. Champaran and Gujarat, Kheda and Ahmedabad. Ahmedabad. हाँ, very good. Okay. Encouraged by the success of these movements, Gandhiji launched a nationwide satyagraha against the Rowlatt Act of 1919, which proposed to detain Indian political prisoners without trial. The movement ended in the Jallianwala Bagh incident in Amritsar, in which hundreds of innocent people were killed by General Dyer. As the news of this tragedy spread throughout the country, civil violence began in all parts of India, because of which Gandhiji was forced to call off the Rowlatt Satyagraha. Around the same time, Indian Muslims were angered by the way the British had treated the defeated Emperor Khalifa of Ottoman Turkey after the First World War. In response to this, Muslim leaders Muhammad Ali and Shaukat Ali proposed to launch the Khilafat movement. Gandhiji seized this opportunity
to bring Indian Muslims and Hindus together to start a unified national struggle against the British. This resulted in the launch of the Khilafat and non-cooperation movement in December 1920. The main agenda of the movement was total non-cooperation with the British government, which included surrender of official titles, boycott of government schools, army, police, etc., and use of foreign goods. However, different sections of the Indian society interpreted the movement in different ways. In the towns, the middle class responded to the movement with a lot of enthusiasm by resigning from government schools, colleges, and courts. In addition, they peacefully picketed shops selling foreign cloth and liquor. In the countryside, the movement took the shape of a struggle against oppressive landlords and talukdars, demanding a reduction of land revenue and abolition of forced labor or begar. To organize these movements, the Awadh Kisan Sabha was set up by Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra in October 1920. Workers employed in British plantations also left their work to return to their villages. However, they were captured and beaten up by the British. Although the movement managed to unite various sections of society to fight against the British rule, the movement started dying out because the Congress was unable to provide alternative institutions, and people were forced to return to their government jobs and services. In addition, Congress workers could not remain non-violent throughout, and there were clashes between the protesters and the British authorities. At Chauri Chaura in Gorakhpur, Uttar Pradesh, a mob of protesters set a police station on fire, killing a number of policemen. Due to this violence, Gandhiji called off the movement in February 1922. Let's recall what you've learned. Indians had to face many hardships during the First World War and in the post-war years, such as shortage of food, increase in taxes, and forceful recruitment into the army. In 1915, Mahatma Gandhi introduced the idea of Satyagraha to organize mass movements against the British. The Rowlatt Satyagraha movement was organized in 1919, which resulted in the Jallianwala Bagh incident, causing the death of hundreds of people. In 1920, the Khilafat and non-cooperation movement was launched to protest against the unfair treatment of Ottoman Turkey by the British. The main aim of the movement was total non-cooperation with the British government and boycott of British goods. The movement was called off by Gandhiji in February 1922 after the Chauri Chaura incident. Okay, very good. So, I think बहुत सारी चीजें clear हो गई होंगी. Now look at this. Sir. Look at this. Yeah. पूछो, बोलो. No, sir, clear. I was clear. Okay, good. So look at this book. This book is called Hind Swaraj, and the writer is Mohandas Karamchand Gandhi. Karamchand Gandhi. KM Gandhi लिखा है, मतलब करमचंद मोहनदास गांधी, है ना? क्योंकि Sir, पहले now this क्या book होता is था ना? available in market. हाँ. Okay, please mute कर लो. हाँ, good. So you see that this famous book Gandhiji had written in 1909 called Hind Swaraj, and the basic idea of this book is that Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperations of Indians and had survived only because of this cooperation. उनका ये कहना था कि अगर ब्रिटिश रूल को हमारे इंडियंस सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये ज्यादा दिन तक ये लोग टिक नहीं पाएंगे. और एक तरह से देखा जाए ये ठीक भी था. He said that they have survived only because the cooperation of the Indian people.
And if Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year. And then Swaraj would come. That means self-rule. Therefore, he started the non-cooperation movement. So what was this non-cooperation movement? This non-cooperation movement was adopted by the Congress on December 1920 at the Congress session at Nagpur. So Nagpur में ये non-cooperation movement was adopted by the Congress. And Gandhi felt that British rule had survived in India. जो अभी मैं आपको बता रहा कि नेटिव लोगों ने उनको कोऑपरेट कर रहे हैं. जदि आमे निजे तांको संगे कोऑपरेट न करिबा ताहले एटा बंद हि तांको से माने पळेबे छाडी की पळेबे. And then he declared in that session itself that the movement should begin with the surrender of the government awarded titles. Shantanu? Yes, sir. अब सुनो. And a boycott of civil service, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. Okay. So Subramaniam Iyer and Rabindranath Tagore renounced the honorary title of sir. अब बताओ सर का मतलब क्या है? तुम तो मुझे भी सर बोलते हो, मैं भी लौटा दूंगा. So we are giving respect to somebody. Okay, but what does sir mean actually? मतलब जो ब्रिटिश का उन्होंने जो टाइटल देते थे, तुमको पता है आज भी ब्रिटिश लोग सर का टाइटल उपाधि देते हैं. टाइटल माने उपाधि. Sir, as we are using Mr. Mrs. here, they are giving title as sir, Okay. madam. अच्छा. जानिଛ सर केमती दिया जाए टाइटल? एबे भी दिया जाउची. Sir Vivian Richards. Vivian Richards was a very famous cricketer. He is also given the title of sir by the British Empire. Sir, I am thinking about Sir Isaac Newton and Madame Curie. Oh yes, absolutely. Sir Isaac Newton, very good. Sir Isaac Newton, उनको भी दिया गया था, है ना? Sir, in English also we have a chapter in which we went through means madam title. Madam. So I asked once. Exactly. तो क्या आंसर मिला? That is given in UK only. क्या? UK and also in France also. हाँ, तो क्या आंसर क्या था इसका? बताया कि नहीं बताया? I don't. Okay. मैं बताता हूँ. See, actually, सबसे पहले, whenever you say your name, अपना नाम जो बताते हो ना, तो जनरली हमें ओडिशा रे हो कि इंडिया रे हो, अच्छा तुम ना कौन ना मोना होची शांतनु कि शांतनु राज. अच्छा तापर पछरे तुम टाइटल टा कौन एंती पछरती ना कि पछरे अंकिता कि मनकर शुभम. अच्छा तुमरो ना कौन ए, अच्छा तुम टाइटल कौन, तुम कहो पंडा. Okay, now actually that is not title. Title comes before, not after. That is the surname. Exactly, that is a surname. So never make this mistake that it is our title. It's not a title. Our surname. So what is the title? Okay, and that is given to somebody. Exactly. for his qualification or extraordinary performance. अच्छा, ये तो गूगल बाबा ने तुम्हें बता दिया. अच्छा. No sir, it is not there. Sir, not there like this. Okay. Anyway, लेकिन ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में सर का मतलब क्या होता है? किंग या क्वीन किसी को भी जो जिसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है फॉर इन एनी फील्ड, दे गिव हिम द टाइटल ऑफ सर और मैडम. उनको नाइटहुड बोलते हैं, नाइट. सो ही वाज नाइटेड. नाइट मतलब नॉट NIGHT, इट इज KNIGHT, है ना? KNIGHT मीन्स, देखो अभी गूगल देखो, व्हाट इज KNIGHT, जल्दी देखो. हाँ, so basically now they are a part of the British Army. Okay, so they are called the knight. So they are knighted, and a very senior person in the British Army is called a knight. So when somebody is knighted, माने honorary. जेमिति तुम जानिथिबो धोनी को भी कर्नल उपाधि दिया जायछि by Indian Army. Yes, sir. हाँ, so तो आर्मी फाइट करना. So similarly,
तांकर सेठी माने ब्रिटिश ये रे जो माने सब नोबल फैमिली रू आसंती by default they are called sir or they are knighted by default जो नोबल फैमिली आसन एंड जो मन नोबल फैमिली नो भी आसी थांती सेमान को भी सर या मैडम को टाइटल दिया जाए ओके जदि सेटा को किंग किंबा क्वीन जे भी रूल करछथि तांको जदि से चाहिबे तांको देई परिबे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ए पर्यंत सचिन तेंदुलकर को मिलिनी नाइटहुड ओके सो कथा चलछि तांको मिल जिवो बोली देखा जाओ लेट्स सी बट now the point is that's a very coveted and very respectful honor and title इतने सहजरे लोक मान को मिल जाएनी okay so that's a very coveted title now Rabindranath Tagore was called or he was knighted or he was given the title of sir. Subramaniam Iyer was also given this title and they had received it, they renounced. That means they returned back. Sitme aji ame kebe Sir Rabindranath Tagore lekhunu na? No sir. Because they had returned it. And Gandhiji was also given this title Kaiser-e-Hind by the British government. Kaiser-e-Hind. And that medal also he returned. Okay. Then a full civil disobedience campaign was so that's what they thought that it would be launched if the government uses repression तापर जदि गवर्नमेंट हमको दबेवा चेष्टा करिबा हमें पूरा फुल्ली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करिबा एंड फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हला इन जनवरी 1921 ओके सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो डिफरेंस होची नॉन कोऑपरेशन रे माने कोऑपरेट करिबे नाही सिविल डिसोबीडियंस माने से माने एनी लॉ को डिसोबे करिबे इन अ non-violent manner. Now, each year में देखिलु जे so many social groups they participated in this movement and they had their own aspirations, whatever their aspirations were, but they participated. And all of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. So Swaraj के लिए सब लोग खड़े तो हो गए, लेकिन सबके लिए वो अलग-अलग उनका सोचना अलग था, सबके लिए उसका मीनिंग भी अलग था. They will be using violence. Some people were using violence. Some people were thinking कि सेल्फ रूल का मतलब ये हुआ कि मैं खुद अपना एक छोटा सा किंगडम बना लूंगा और उसी में हम लोग सेल्फ रूल करेंगे, हम दूसरे लोगों के साथ मिलके नहीं रहेंगे. वो भी कुछ लोग सोच रहे थे ऐसे. So non cooperation movement जब start हुआ, so what was the result of that? Thousands of students left the government school. They left the government school, they left the colleges, the headmasters, teachers, they all resigned. Lawyers gave up their legal practice. वो कोर्ट ही जाना उन्होंने छोड़ दिया. Many other officers also resigned from their jobs. The council elections were boycotted in most of the provinces except Madras. Madras को छोड़ के council election almost हर जगह पे boycott कर दिया गया. Non-payment of taxes was a powerful method of fighting an oppressive government. They were not ready to recognize the government as legitimate. Tax अगर तुम देते हो, इसका मतलब तुम क्या करते हो? तुम recognize करते हो कि एक government है जिसको मैं tax भर रहा हूँ. By not paying taxes, in a way, they said that we do not recognize that you are a legitimate government. British कोई legitimate government है, उसको हम नहीं मानते, तो हम tax नहीं देंगे. अच्छा, बहुत सारे पंचायत में क्या है, नाई धोबी बंद हो गया. मतलब the nais and the नाई मतलब क्या है? बार्बर, वेरी गुड. जो बाल काटता है उसको नाई बोलते हैं. धोबी मतलब जो वॉशरमैन. आजकल घर में हम वॉशरमैन नहीं आते ना, घर में हम कपड़े धोते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? हाँ, तो ये होता था. तो वो लोग ने भी लैंडलॉर्ड को सर्विस देना बंद कर दिया. The barbers and the washermen. So the effects of non-cooperation movement on the economic front were more dramatic. Foreign goods were completely boycotted. Liquor shops were picketed. Foreign cloth burnt in huge bonfires. तो क्या हुआ? फॉरेन गुड्स कोई नहीं खरीदा. लिकर सबको उन्होंने वहां पे धारणा लगा के बंद करवा दिया. फॉरेन कपड़े जो आते थे उसको जला दिया.
the import of foreign cloth became half between 1921 and 22. 102 करोड़ से only 57 करोड़ हो गया. Okay. So as the boycott movement spread, people started discarding imported clothes and they started wearing only Indian clothes. Indian clothes क्या था? Khadi. Khadi. So production of Indian textile mills and handlooms went up. But उसके बाद क्या हुआ? Gradually this movement slowed down. And ये उसके बहुत सारे reasons थे. कुछ reasons ये थे कि the khadi cloth was more expensive than the mass produced mill cloth. And जो गरीब लोग थे वो लोग खादी कपड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत महंगा था. सिमिलरली जो बॉयकॉट किया, जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड कोर्ट्स एंड ऑल दैट, तो हुआ क्या? जो स्कूल्स थे वो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था, लेकिन जब वहां से बच्चे छूट गए, नहीं गए स्कूल, तो कहां जाएंगे? इंडियन स्कूल तो कोई सेटअप ही नहीं हुआ था. सो जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था तो बच्चों का पढ़ाई ही मतलब वो हो रहा था, अफेक्टेड हो रहा था. इंडिया में कोई ऑफिस नहीं था जहां पे जाके उनको रोजगार मिल सके लोगों को, और जो भी हो रहा था बहुत स्लो था. तो अपना रोजी रोटी लोग कैसे कमाएंगे, खाएंगे क्या? सो धीरे धीरे क्या हुआ? द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगैन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स. धीरे धीरे वो लोग वापस जाने लगे. द लॉयर्स, जब अपना रोजी रोटी ही नहीं है, दे जॉइन बैक द वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स. तो यही हुआ. उसी टाइम देयर वाज अ पीजेंट मूवमेंट आल्सो. जो गांव में लोग थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग कुछ और था. अवध एक जगह है, मतलब उस टाइम था जहां पे कि 1920 में the peasants are suffering a lot because of the oppressive landlords and तालुकदार्स. जो लैंडलॉर्ड हैं और जो मतलब टैक्स वैक्स लेते हैं, वो लोग बहुत इनको परेशान करते थे. So these peasants organized movements. Peasant मतलब small businessmen जो होते हैं. तो they started this movement against the talukdars and the landlords in villages under the leadership of बाबा रामचंद्र. अब देखो यहां पे उनका स्वराज का मतलब क्या है? पहले उन्होंने तो स्टार्ट किया, स्वराज का मतलब है ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाके हम लोग अपना खुद का सेल्फ रूल बनाएंगे. यहां पे इनको क्या मौका मिला? इनको ये मौका मिला कि हम किस तरह से, हमें जो ऑपरेस कर रहा है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स हैं, उनसे हम लोग कैसे अपने आप को छुड़ा पाएंगे. और बाबा रामचंद्र उन्होंने डिस्कस किया गांधी जी के साथ, और सिंस गांधी जी वाज आल्सो अगेंस्ट ऑपरेशन, उन्होंने बोला ठीक है करो. उसके बाद क्या हुआ? जब नेहरू को ये पता चला, ही सेट अप औधा किसान सभा टू हेल्प देम. उनको मतलब हेल्प करने के लिए, उनको मदद करने के लिए नेहरू ने क्या किया? ही सेट अप द औधा किसान सभा एंड 300 ब्रांच उसके खुल गए किसान औधा सभा का ऑल ओवर इंडिया. सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगैन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट ऑफ कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल. तो उन्होंने सोचा, कांग्रेस ने सोचा कि अगर ये जो अवध का जो पीजेंट स्ट्रगल है उसको अगर हम लोग मेन स्ट्रीम में मिला दें तो हमारा और स्ट्रगल बड़ा हो जाएगा, तो एक साथ मिलकर हम फाइट कर सकते हैं. सो इसमें हुआ क्या? जब ये मूवमेंट बड़ा हो गया, लैंडलॉर्ड्स वर अटैक्ड, शॉप्स वर लूटेड, लूट किया गया. जो ग्रेन होर्ड्स, मतलब जहां पे जो ग्रेन रखा हुआ है ना, बहुत बड़ा होर्डिंग करके रखा हुआ है, अम्मारा जोड़ा कहते आगरू, they were taken over, and the name of Mahatma Gandhi was being invoked to sanction all action and aspirations. तो उनका जो खुद का मतलब जो अंडरस्टैंडिंग था स्वराज का, उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लेके उसको आगे निकाल चलाने का काम जारी कर दिया. ये आया पहले तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया,
ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस ने। उसके बाद आ गया कौन? पीजेंट स्ट्रगल। तीसरा, व्हाट हैपेंड अमंग द ट्राइबल्स। नाउ ये जो पीजेंट्स थे, जो ट्राइबल लोग थे, उन्होंने गांधी का जो आइडिया ऑफ स्वराज को दूसरे और एक तरीके से उन्होंने उसको समझाया, मतलब वो लोग समझा उन्होंने और उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया। आंध्र प्रदेश में एक हिल है जिसका नाम है गुडेम हिल, और उस गुडेम हिल में एक मिलिटेंट गरिला मूवमेंट स्टार्ट हो गया इन 1920। तो गरिला मूवमेंट क्या है? सर लुच्ची की ब्रिटिश पुलिस मैन को ऊपर को अटैक करते लाइक माउंटेन्स रे, जंगल्स रे, गोरिल्ला लुच्चीगिरी। वॉर। हाँ, जो हिडन वॉरफेयर होता है उसको गरिला वॉरफेयर बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक गरिला मूवमेंट स्टार्ट किया, जो छुप छुप के उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर उन्होंने गोली चलाया, और जो भी उनका एनिमी उन्होंने समझा उसको उन्होंने टारगेट किया। Here the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel and fruits. तो यहाँ पे क्या किया था, इस जगह पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उन्होंने जो फॉरेस्ट एरिया था उसको उन्होंने बंद कर दिया था। तो कोई उसके अंदर नहीं जा सकता अपना कैटल ग्रेजिंग के लिए, मतलब जो गाय बाछड़ी चलेगा पे जाई परिवनी, फ्यूल उड़ाने पे जाई परिवनी, काठ खाने पे टैक्स बोतला तो टैक्स आ वुड और फ्रूट्स भी तमे सेटू आने जाई परिवनी। सो व्हाट हैपेंड, एमाने जो हिल रो लोक थिले, जो ट्राइबल एरियाज रो लोक थिले, से माने बहुत रागी गले, दे वर एनरेज्ड। सो से माने कोन कले, दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन, they attempted to kill the British officials, and they carried on this guerrilla warfare for achieving their स्वराज। तो उन्होंने बोला हम अपना स्वराज अचीव करेंगे। एंड गवर्नमेंट जब ये उनको जो अभी टैक्स का था कोतला, उसको वो लोग बोलते थे, टैक्स तो लेते ही थे, साथ में उसको बेगर बोलते थे। बेगर का मतलब है फोर्स्ड लेबर। वो लोग वहां पे रोड बनाते थे और बाकी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन काम चलता था, तो जबरदस्ती इन लोगों को, ट्राइबल्स लोगों को पकड़ के वहां पे काम करवाते थे, उसको बेगर बोलते थे, फोर्स लेबर। तो इसीलिए हिल पीपल आल्सो रिवोल्टेड, और उनका एक लीडर थे जिनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू, हु वाज थॉट टू बी एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। उन्होंने खुद को बोल दिया कि मैं तो इनकार्नेशन हूं गॉड का। And he said that he was inspired by non-cooperation movement and persuaded the people to wear khadi and give up drinking. उन्होंने ये किया। But at the same time, he also asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. तो हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ? उनका जो स्वराज का जो फाइट था वो वायलेंट हो गया, वो नॉन वायलेंस वाला स्वराज का फाइटिंग नहीं था, जो कि गांधी जी सोच रहे थे। अभी चौथा, प्लांटेशन में जो असम का जो टी गार्डन्स हैं, असम में बहुत सारे टी गार्डन्स हैं, आप लोग जानते हैं, है ना, जानिए कि नहीं? यस सर। सो द प्लांटेशन वर्कर्स हु वर वर्किंग इन असम, फॉर देम फ्रीडम मेंट वेरी डिफरेंट थिंग। क्योंकि एक बार जब वो लोग चले जाते थे प्लांटेशन के अंदर, टी गार्डन के अंदर, उनको बाहर छोड़ा नहीं जाता था, वो लोग वहीं पे ही काम करते थे। तो उनके लिए फ्रीडम क्या था, उनके लिए स्वराज क्या था? उनके लिए यह था कि वो फ्रीली मूव कर सके, जब चाहे अंदर जाएं, जब चाहे बाहर आ जाएंगे, यही था उनके लिए। एंड उनके लिए यह भी था कि वो अपने गांव के साथ संपर्क रख सके, which they were not allowed to do. So this act, उनका एक एक्ट था एक्चुअली 1859 का एक्ट, प्लांटेशन एक्ट। तो उसके तहत the plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and they were hardly given any such permission. क्या हुआ? Okay. So when they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities. मतलब मानी लेनी, तांकु नौ मानी की, they left the plantations and headed home. वो घर
जाने लगे, किंतु अनफॉर्चुनेटली हाँ, they thought that the Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their village. उनको ये लगा कि अबिका तो गांधी राज आसी जाइछि, सो आमे हमर टी प्लांटेशन छाड़ी के पड़ेबो, आमे जतोल घरे पहुंचबो हमको सब लैंड मिलिबो, गांधी जी हमको लैंड देबे। किंतु अनफॉर्चुनेटली दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, दे वर स्ट्रैंडेड ऑन देयर वे, काहे कि ना सेतबेल सब देश सारा विद्रोह चलथिला, रेलवे स्ट्राइक थिला, स्टीमर स्ट्राइक थिला, माने ना तो जलपथ देकी जाई परिबे ना तो रेलवे देकी जाई परिबे। सो दे वर कॉट बाय द पुलिस and they were brutally beaten up, बहुत मारा मारी की तांको पुनी फेरे के आनले सेमन। सो फाइनली तो एते प्रॉब्लम स्टार्ट हला, गांधी जी withdrew the non cooperation movement, and when Gandhi ji withdrew the non cooperation movement, उसके भी कुछ रीजन थे, उसके भी कुछ कारण थे। सबसे मेजर कारण था द इंसिडेंट इन चौरी चौरा। चौरी चौरा which is in Uttar Pradesh, a very violent incident took place in February 1992 because people turned violent and set fire to a police station. 22 policemen were killed, and Gandhiji, as all of us know, that he was completely against violence. And यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद in urban areas the movement slowed down because people started joining their work, people started going to the school and college. तो गांधी जी ने ये सोचा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल नीड टू बी ट्रेन्ड फर्स्ट, उनको ट्रेनिंग पहले दिया जाना चाहिए कि व्हाट इज नॉन वायलेंट सत्याग्रह, उसके बाद ही हम सत्याग्रह को चला सकते हैं। तो धीरे धीरे करके ये सत्याग्रह जो है बंद हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। लेकिन देयर आर मेनी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट। Number one, the non-cooperation movement was a large-scale mass movement. It attracted common people from all social groups. मतलब पूरा देश में हर कोई इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। दूसरा पॉइंट यह है कि this non-cooperation movement went alongside the Khilafat movement, so it promoted Hindu-Muslim unity. Third point, peasants and tribals movement also became a part of the Indian national movement. जो कि मेन स्ट्रीम से वो लोग दूर थे, वो भी इस इंडियन नेशनल मूवमेंट के पार्ट हो गए। दे ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ इट। फोर्थली, इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, सो इट पॉपुलराइज्ड द गांधीयन आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह। लेकिन उसके रीजंस ऑफ फेलियर क्या है? द विजन्स ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। कांग्रेस के अपने प्रोग्राम में, क्योंकि उनके अंदर भी काफी अंदरूनी इनफाइटिंग थे, सो इट नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस प्रोग्राम। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। तो स्वराज है क्या, उसको उसको समझाने वाला, उसका इंटरप्रेट करने वाला कोई नहीं था। तो हर एक व्यक्ति स्वराज को अपने हिसाब से देखने लगा। जैसे हमने देखा, पीजेंट ने स्वराज को अपने हिसाब से देखा, ट्राइबल्स ने स्वराज को अपने हिसाब से देखा, प्लांटेशन वर्कर्स ने स्वराज को अपने नजरिया से देखा। सो दे इमेजिन्ड इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। उनको लगा स्वराज का मतलब यह है कि सारा हमारा जो दुख है, सारा हमारा जो प्रॉब्लम्स है, सारा हमारा जो सफरिंग है, वो सब खत्म हो जाएगा। Yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation. वो कहीं ना कहीं तो अपने इमोशंस को जो फ्रीडम मूवमेंट के साथ जोड़ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो स्वराज को नहीं समझ पाए। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. ऐसा तो था कि पूरे देश का जो फीलिंग था, जो इमोशन था, उसके साथ वो लोग जुड़ रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जो मूवमेंट था, सबसे पहला था कि ये लोग नहीं समझ पाए व्हाट वाज स्वराज। So there was no unity. हाँ,
एंड यूनिटी हो सकता था उसको, वो तो मैनेज हो सकता था अगर लोगों को समझ में आ जाता कि व्हाट इज स्वराज। यूनिटी भी नहीं था। एंड थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट टर्न वायलेंट, जो कि कभी भी गांधी जी का फिलोसॉफी नहीं था। तो आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे, द रेस्ट पार्ट जो रह गया है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। आई थिंक अभी टाइम नहीं है, सो जो पैसिव रेजिस्टेंस और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मे बी इन द व्हाट्सएप ग्रुप आज ही बात करेंगे once you finish your classes, the other classes. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। If there's any question, ask me. Sir, did women participate in the non-cooperation movement? Very, very important and interesting question. Lot of women actually participated in the non-cooperation movement because Gandhi ji always wanted women to be a part of the non-cooperation movement. अगर हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देखें, आप बताओ कितने women के नाम जानते हो? How many women do you know of who actually became a part of the Indian national movement, Indian freedom movement, freedom struggle? एक एक करके गिनाओ मुझे। Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, very good. Okay, Sarojini Naidu, number 1, number 2. बस Lakshmi Bai. Hardly 1 or 2. हाँ बस इतना ही। सरोजिनी नायडू खत्म। विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, Lakshmi Bai. लक्ष्मी बाई। ओके, आई मीन यू कैन नॉट से कि फ्रीडम स्ट्रगल तो मतलब काफी बाद स्टार्ट हुआ ना, वो शी वाज देयर, वो बहुत पहले है, लेकिन उसको फ्रीडम स्ट्रगल नहीं बोल सकते। शी वाज बेसिकली प्रोटेक्टिंग हरसेल्फ, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल कब से स्टार्ट हुआ, जब जो 1857 सिपाही म्यूटिनी, उसके बाद से हम उसको फ्रीडम स्ट्रगल का नाम देते हैं। हाँ, और कोई नाम? डॉक्टर एनी बेसेंट, ये नाम भी नहीं सुना है तुम लोगों ने? नो सर। अरुणा असफ अली, कितने women हैं, कितने women हैं? So many women were part of the non-cooperation movement. They were part of, in fact, Kasturba Gandhi also had gone and helped Gandhiji in many different things. हमारे अगर यहाँ पे बोले पंडिता रमा देवी का नाम सुना है, जिसके नाम से रमा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर में बना है। सड़ेवाड़ा कॉलेज जो कटक में है, सड़ेवाड़ा वुमेन्स कॉलेज, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। ये सब फ्रीडम फाइटर थे। हाँ, इनफैक्ट हमारे जो पोएटेस है कुंतला कुमारी साबत, शी वाज आल्सो ए फ्रीडम फाइटर। सो मेनी, ये तो ओडिशा की बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो कितने लोग हैं। ओके, सो आई मीन women had a very important role to play in the freedom struggle also, but अगर हम उस टाइम को देखें तो उस टाइम पे क्या था कि there are a lot of restrictions on women, which Gandhiji and many social reformers they wanted to change that, लेकिन फिर भी मतलब घर में तो था ना, इन महिलाओं ने अपना उसको ओवरकम करके ये लोग सामने आए थे फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लेने के लिए। तो इसलिए बहुत सारे विमेन थे। स्पेशली अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखें, इसका मैं एग्जैक्ट नाम नहीं जानता कितने महिलाएं थे, मैं उसको सर्च करके बता सकता हूं, बट यू नो ओवरऑल अगर फ्रीडम स्ट्रगल में देखें तो देयर आर सो मेनी पीपल, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, देन यू नो कमला नेहरू, यस, हाँ एग्जैक्टली, बस कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। ठीक है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट गिव्स मी सम थॉट आल्सो टू फाइंड आउट कि और कौन कौन वुमेन थे जो कि
जिन महिलाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, are there any other questions? Because Sasmita ma'am is already there. Okay, if there are no more questions, then we'll meet again in the next class, and I request Sasmita ma'am to take over.